Good evening, everyone. Welcome to another book review session by the Bibliophile family. Today we have Santosh Gupta ji with us, book reviewing Do It Today by Darius Foru. So over to you, Santosh ji. You're muted. Thank you, Palakji, and thank you, entire family, the TBF family. Uh, I got this opportunity to review the book. So, hey everyone, so great to see all of you here today. Before we dive in, I just want to say I'm really excited to share this book with you all because honestly, it's one that I found myself nodding along to almost every other page. Yes, this is exactly me. So, this book is so relatable. But first, let me ask you something. Just quick show of hands and be honest. How many of us have said to ourselves at some point of time, I'll do it tomorrow? So I'm pretty sure all of us just raised our hands in our heads right now. सबने अपने सर पे अपने मन में हाथ उठाया ही होगा, and that's exactly what this book is about. That little voice, that tomorrow habit, so Darius Fox spent years fighting it, and this book is everything about what he learned. So this book has each and every story what he felt about the word procrastination. So he was also the person like ठीक है कल करेंगे like that. So yes, this book is called Do It Today, and the title says it all. uh, Not do it tomorrow, not do it when you feel ready, today. Just let me quickly walk us through what we will cover in the next I think 30 to 40 minutes. Is it okay, Palak ji? So let's go to the next slide. So this is the brief agenda. Actually, I have prepared this slide just like a corporate one, what we will discuss. So next one. So yes, we start with the author because I think knowing who Darius Forex is actually helps us trust his advice. Then the book review. Then we go part by part through all the sections. This book is actually having three sections, and at the end we can have a small good discussions. So yes, I hope that this session will be beautiful and helpful for each and everyone present here. So Darius Forex, the picture is on the screen. So he is a practical thinker, he is a blogger and a researcher as well. And he started writing in 2015. I have read about him through Google. And by now, more than 4 million people have read his articles. And that's not a number we hit by accident. People come back because his writing actually helps him, right? So here's the thing about him that I find really relatable is he was not always this productive put together person, and he admits in the very first chapter that he was a habitual procrastinator. He talks about his summer job at 16 where he spent all his time writing overly long call notes just to avoid making the next sales calls. So I mean, we have all had that version of ourselves that we can do it tomorrow. So he uses mix of stoicism. Stoicism, we all have known that this is an ancient Greek philosophy and modern logic to help people to like us, to take control of our days and our routine. And many of us in this group might have already come across his other impactful works. We are already reading Focus on What Matters. Other books are Think Straight, which focuses on mind control and decision making. What It Takes to Be Free, The Road to Productivity, and there are various other books which we have come across. So Darius, who wrote this book, Do It Today, this book has been written, in his signature punchy fluff freestyle.
And why we call his writings as fluff free? Because he uses the practical scenarios which is relatable to everyone's life. So he knows that if a book is too long or too boring, so we will probably procrastinate on reading this book too. And this book is about avoid procrastination. So let's begin our journey through the three stages what he has led for us. So next slide. So this is the book. Now, one thing that makes this book unusual as its format. Each chapter is a standalone essay type, and this means we don't have to read it front to back. We can open to any page and get immediate value. Forox actually writes this in the book itself. He says that there are no rules to reading. Skip what is not relevant, highlight what hates, come back to what matters. So I loved that. I felt it very human. Each and every context of this book was relatable to me, and the big idea of the whole book is written in the middle actually, and that is we are our actions. What we do today shapes who we become tomorrow. So this is very touching line and very practical. And yes, the three parts which is mentioned in this slide, the book is divided into these three parts only. Part one is why we stop ourselves, that is procrastination. Second part is about how we can work smarter, that is productivity. And third part is achieving more, means if we learn to avoid procrastination, we become more productive. But how do we constantly or consistently achieve more through these habits? So Darius wrote this book in a very simple, punchy, I told you, in a very fluffy style. And definitely we need to delve into the other sections what this book starts. So we can start with the part one. Next slide. Yes, the part one is saying itself, overcoming procrastination. This is the next slide. We will cover the details of this part. Yes. So part one, that is where the book gets us right away, because Forox doesn't start with tips, he starts with honesty. So he admits his own procrastination, and reading his stories we immediate think oh, that's me too. So you must also will relate to each and every contents. So हम सब ने वो इंटरनल बैटल लड़ी है. एवरीवन नोज कि इट्स 7 PM नाउ एंड वी नो वी शुड वर्क, बट हमारा मन कहता है एक और एपिसोड देख लेते हैं, हम वेब सीरीज देख रहे हैं, कुछ और करते हैं, तो ये थोड़ा और कर लेते हैं. जैसे अभी मैच चल रहा था, मुझे तो मन ही नहीं था बुक रिव्यू करने का, तो बट आई थॉट यस ठीक है, मैच तो आता रहेगा, बट बुक रिव्यू इज़ वेरी मच बिकॉज दिस वॉज द कमिटेड आइटम, सो करना था. सो डेरियस स्टार्ट्स द बुक बाई बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ही सेज he wasn't born productive, and in fact he was a master at wasting time. So part one is about realizing that procrastination is a choice and we can choose differently. So there are various chapters, and these chapters tells us to how do we, how should we avoid procrastination. So it starts with do it today, not tomorrow. So this is an opening essay, and it punches immediately. And the sentence says it itself ki writer writes about how how he built a business with his dad. Then उसके बाद क्या हुआ कि then he got restless, tried, उसके बाद freelancing try किया उसने, then but kept avoiding that hard work. उसको hard work पसंद नहीं था. He find ईमेल टू आंसर, हर एक ईमेल का उसके पास कुछ ना कुछ लिख के रिप्लाई करता था, आर्टिकल्स था पढ़ने को, सब कुछ था, बट ही his habit was to keep avoiding everything. Then he says कि procrastination is not a time problem. ये time problem नहीं है. It's not that we don't have enough hours. It is a mindset that we are battling ourselves. He calls it the inner battle, and the solution isn't
a to-do list or any app. It's building mental toughness and a daily system, he says. So in entire chapter, entire part, he has explained various tricks to how to, avoid procrastination. The chapter 2 is what we do when we can't focus. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे. So the author, talks about how even he has related everything, with his example, कि how even someone who built his entire blog around productivity loses focus. मतलब इतना बड़ा राइटर जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर इतना कुछ लिखता है, वो भी फोकस खो देता है. एंड व्हाट डज ही डू? तब वो क्या करता है? 2 things. First, he eliminates everything. Means he asks himself कि what can I remove from my life to make focusing easier. Means what are those factors जिसको हम eliminate करें. तो फोकस करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट द थिंग्स विच आर नॉट रेलिवेंट. ही gave up YouTube videos even though his audience liked them because it was taking attention from his writing. वो देख बार बार चेक करता था, यार YouTube में आज मेरे कितने व्यू है, और ऑडियंस को लगता था कि वो नया कंटेंट डाले, बट फिर भी वो वीडियो देखना अवॉइड किया, क्योंकि अगर वो वीडियो देखने पे फोकस कर रहा था तो उधर उसका राइटिंग जो है उस पर इफेक्ट हो रहा था. सेकेंड थिंग, after eliminate, he says, this is the one fascinating, he thinks about past success. There's actual neuroscience behind this. There was a neuroscientist, he gives an example. His name was Alex Korb. He found that remembering positive past events increases serotonin. मतलब अगर हम कोई पास्ट इवेंट, जैसे मैं कल इवनिंग में ही मैच खेला था, बिकॉज आई एम शिफ्टिंग टू मुंबई ऑन मंडे, तो टीम ने रखा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ बिताएंगे, तो मैंने एक छक्का मारा और बहुत ही प्यारा सिक्स था. सो जब मैं मारा तो घर आके बार बार मैं वो आई एम रिपीटिंग दैट स्टाइल, कह रहे हाउ आई बैट को कैसे चलाया और क्या किया. सो वी आर मीन्स आई वॉज रिमेम्बरिंग द पॉजिटिव इवेंट, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग. और इससे क्या होता है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, विच इज़ डायरेक्टली लिंक टू our ability to focus. So the next time, if we are distracted, what we should do, we can literally boost our own brain chemistry just by remembering a time when the things went well. So this is pretty incredible, but yes, ऐसा होता है. तो जब भी हम डिस्ट्रैक्शन मोड में रहते हैं और कुछ अच्छा अचीव किया हो पास्ट में, तो वी शुड रिमेंबर दैट. तो ये 2 चीज़ें हैं, एलिमिनेट एंड रिमेम्बर द थिंग्स. तो ये 2 मेथड से हम लोग फोकस को वापस ला सकते हैं इफ़ वी आर डिस्ट्रैक्टेड. इन चैप्टर 3, दैट इज बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड द चैप्टर 3 में प्रोक्रेस्टिनेशन बीट करने के लिए ही हैज़ गिवन अ साइंटिफिक फॉर्मूला. दिस इज द चैप्टर वेयर फोरॉक्स ब्रिंग्स इन रिसर्च, कुछ रिसर्च करके बताते हैं कि procrastinators depend on externally imposed pressure to get the things done. We wait for deadlines, for crisis, for someone else to push up. मतलब हमको लगता है कि अगर टाइम आ गया, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँगा, इतने दिनों से मुझे मालूम था कि 4 तारीख को रिव्यू देना है, बट पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आज बैठ के बनाया है, तो डेडलाइन था तो मैंने जल्दी जल्दी में वो कर लिया. सो हिज कंक्लूजन इज दैट विल पावर डजेंट वर्क, सिस्टम्स डू. सो डेडलाइंस, हम लोग अभी तक ये समझते थे कि अगर विल पावर है तो हम ये कुछ कर लेंगे, बट विल पावर से ही अकेले कुछ नहीं होता, सिस्टम्स सारा काम करता है. डेडलाइन, अकाउंटेबिलिटी, पार्टनर, ये सिस्टम क्या है, 7 बजे मुझे रिव्यू देना था और ये फिक्स है कि टीवीएफ फैमिली में एवरी सैटरडे को 7 बजे वो होता है, और आज मेरा कमिटमेंट, आई कैन नॉट चेंज इट टुडे. आई कैन नॉट कॉल पलक जी एंड से कि अरे आज छोड़ देते हैं, मुझे शिफ्टिंग प्लान करना है, कोई और किसी और का रिव्यू करा लेते हैं. सो दिस इज अ सिस्टम, हम एक सिस्टम के अंदर हैं, तो हमारा विल पावर अगर नहीं भी करने का है तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा. अकाउंटेबिलिटी, पार्टनर्स, वर्किंग इन इंटरवल्स, exercise, healthy diet, lot of factors are there, which combine these things, and we have a system that does the heavy lifting for us. तो इस सिस्टम की वजह से भी कभी कभी हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने वाली जो चीज़ है, वो हट जाती है. एंड ही सेज कि इफ़ यू डोंट नो योर वाई, तो मेक समथिंग अप. इवन मेड अप पर्पस मेक्स हार्ड वर्क बियरेबल.
सो अगर पर्पस है तो भी हार्ड वर्क आप कर लेंगे, जैसे मैंने आज दिन भर बैठ के स्लाइड बनाया, इट लिटरली टुक लॉट ऑफ टाइम. सो these are the things. In chapter 4, that is about stop wasting time, know your time. So what it says, this one is from a Peter Drucker's idea, and the idea is track everything you do hour by hour, okay, and for 2 weeks, for 3 weeks, and most of us think we know where our time goes. We don't. हमें लगता है कि हमें पता चलता है कि टाइम कहाँ जा रहा है, लेकिन हम कैलकुलेट नहीं कर पाते. तो इसीलिए हमें एवरीथिंग को अगर ट्रैक करने की आदत डाल लें हम, तो वी कैन एनालाइज कि हमारा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है. सो द फोरक्स जो है, ही हैज ट्राइड दिस एंड फाउंड ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ टाइम डिसअपियरिंग इनटू थिंग्स दैट हैड जीरो इम्पैक्ट इन हिज लाइफ. तो हमारे में क्या होता है कि अगर हम ट्रैकर बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है. तो वंस वी सी इट, वी कैन कट इट. सो इट साउंड सो ओबियस एंड येट ऑलमोस्ट नन ऑफ अस डू इट. कि हम लोग सबको मालूम है कि हमें एक लिस्ट बनाना चाहिए, ट्रैकर बनाना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं. ओके, एंड there are various other chapters in this part which tells us how to avoid procrastination. So there's a story I would like to share. The story is about Rohan. So Rohan is just like us. He is very ambitious, hardworking, and always full of नए आइडियाज़. कुछ ना कुछ उनके पास आइडियाज़ रहते हैं नए नए. तो कुछ साल पहले लॉकडाउन के टाइम व्हाट हैपेंड, रोहन डिसाइडेड ही वांटेड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. उस समय बहुत सारे लोगों के मन में आया कि हम यूट्यूब चैनल चालू करें, क्योंकि घर में कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे वी कैन डू सम ऑनलाइन थिंग्स. टू टीच कोडिंग, ही वॉज वेरी गुड एट कोडिंग. तो कोडिंग के लिए यूट्यूब चैनल चालू करने को सोचा उसने. वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, ही ब्रॉट अ वेरी कॉस्टली कैमरा, बहुत ही महंगा कैमरा मंगाया, नॉइज़ कैंसलिंग माइक मंगाया, सेटअप किया जो एक प्रो लोग करते हैं यूट्यूब चैनल के लिए, एंड इवन पेंटेड हिज वॉल फॉर द बैकग्राउंड. वो चाहिए होता है ना, हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो पीछे क्या होना चाहिए. पर जब भी शूटिंग का रियल काम आता, क्योंकि शूटिंग इज़ वेरी टफ, वहाँ पे कट और एक्शन वाला चीज़ आता है, तो जब भी शूटिंग का टाइम आता था, हिज ब्रेन वुड गिव हिम वैलिड एक्सक्यूज़. कुछ ना कुछ होता था. ही वुड से, यार आज ऑफिस में बहुत मीटिंग थी, बहुत कुछ डिस्कस हुआ, सो आई एम एग्जॉस्टेड, कल फ्रेश माइंड से पक्का रिकॉर्ड करूँगा. फिर कल, उसके बाद क्या हुआ, फिर कल आया तो उसे लगा आज दोस्तों का प्लान बन गया है, क्रिकेट खेलना है या कहीं मूवी जाना है, लेट्स एंजॉय टुडे, आज कर लेते हैं, आज के बाद तो कल हो ना हो किसने देखा है. तो फिर करते हैं, अरे यार कल तो वीकेंड आ गया, एक काम करते हैं वीकेंड में तो रेस्ट कर लेते हैं, मंडे से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे. ये जो मंडे और 1 तारीख वाला सिस्टम है, हम सब इसको फॉलो करते हैं. एंड मंडे देन बिकेम नेक्स्ट मंथ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ बिकेम नेक्स्ट ईयर. आज 6-7 साल हो गए और उसका माइक आज भी एक कोने में धूल खा रहा है. एंड डेरियस फोरक्स सेज कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अबाउट लेजीनेस. अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही लेजी था, उसने दूसरा काम किया. इट्स एन इमोशनल दलदल. ये एक इमोशनल दलदल है प्रोक्रेस्टिनेशन. रोहन वॉज नॉट लेजी, ही वॉज जस्ट स्केयर्ड ऑफ नॉट बीइंग परफेक्ट. तो रोहन क्या किया, रोहन की तरह हम सबके पास एक ऐसा ड्राफ्ट फोल्डर है जहाँ सदियों से कुछ ना कुछ हम रखने की सोच रहे हैं और रखते भी आए हैं, और वो खाली वहाँ पे पड़ा हुआ है. वी कीप वेटिंग फॉर द परफेक्ट मंडे, परफेक्ट फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और परफेक्ट न्यू ईयर. बट द ट्रूथ इज सही वक्त कभी आता नहीं है, और उसको छीन कर हमें लाना पड़ता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द part 1 of the book. Next slide, Palak ji. So yes, so if we had to boil part 1, अगर हमें part 1 को पूरा ये करना है down to 1, तो एक टेक अवे है, if it's कि procrastination doesn't disappear through motivation और will power जो हमने अभी पढ़ा, it disappears through a system. So ये 4 स्टेप का फॉर्मूला है which the author has guided us.
द स्टेप 1 इज, ये मैंने समरी किया है आउट ऑफ दिस इंटायर पार्ट. फर्स्ट स्टेप इज नो योर वाई. फाइंड योर इंटरनल रीजन, इवन एंड इन्वेंटेड वन वर्क. कुछ भी करना है हमें एक रीजन चाहिए. सबसे पहले नो योर वाई होना चाहिए. सेकेंड इज बिल्ड अ सिस्टम दैट शुड बी डेडलाइन, अकाउंटेबिलिटी, इंटरवल, गुड स्लीप, नो डिस्ट्रैक्शन. सारा कुछ लिख के कि हमारा एक सिस्टम, एक रूटीन होना चाहिए जिसके अंदर हम ये सब करेंगे. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप 3, दैट इज एक्ट टुडे. So we should not wait to feel ready, just start. Motivation, follows action. ये तो हम पढ़े हैं किसी ना कहीं पे. And the last step is close the day. The 30 minutes evening ritual होना चाहिए. हम सभी जानते हैं every night it should be not negotiable. और ये 4 स्टेप में हम जाएंगे तो we can definitely avoid the procrastination thing. सो नीचे मैंने एक हल्का सा चैलेंज लिखा है. इट इज़ अ ग्रुप चैलेंज आई वांट टू गिव ऑल ऑफ अस बिफोर आर कि हम लोग कभी और डिस्कस करें इन सभी चीज़ों पे. सो एक टास्क कुछ लेना है जो हम बहुत दिनों से अवॉइड कर रहे हैं, और उस टास्क को हम ये 4 स्टेप में डालें एंड नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि क्या होता है. सो आईड लाइक टू फिनिश दिस फर्स्ट पार्ट विथ अ ब्यूटीफुल पोएम. एंड द पोएम इज़ कि कल कल करते बीत रही है ये जीवन की धारा. कल कल मीन्स टुमारो. कल कल करते बीत रही है ये जीवन की धारा. आलस के इस चक्रव्यूह में फंसता है मन हमारा. सही वक्त का रास्ता देखना बस एक बहाना है. कि सही वक्त का रास्ता देखना बस एक बहाना है. जो अधूरा छोड़ा था कल उसे आज ही निभाना है. मतलब आज जो है ना, आज को अगर हम कल पे टालेंगे तो आज जो है ये कल वाला कल है जो हम आज के लिए रखे हुए थे. हौसला कर और पहला कदम हिम्मत से बढ़ाना है. इंतज़ार मत करना है किसी का, बस चुपचाप शुरू हो जाना है. मीन्स डू इट टुडे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट. सो वी शुड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. पूरे 3 पार्ट में दिस बुक इज देयर. सो सेकेंड पार्ट इज improving productivity. Now we have learned how to avoid procrastination. So second part is is where a lot of us will see ourselves most clearly, because we all have been very busy. We have full days, packed calendars, and yet somehow the most important things never get done. So the author has a lot to say about the gap between the between busy and to be productive. हम बहुत busy रहते हैं, but क्या हम productive हैं? तो उसके लिए नाउ दिस पार्ट एक्सप्लेन्स अबाउट ऑल सच थ्योरीज, जहाँ पे हम बिजीनेस में और प्रोडक्टिवनेस में गैप को ढूंढेंगे. सो वंस वी स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, व्हाट वी डू विथ अ टाइम. क्या करते हैं कि ये जो सिस्टम है the author wants to say that कि हसल इज अ लाई. कोई भी जहाँ पे हमको लगता है ये हसल है, वो हसल नहीं होता. वर्किंग 15 आवर्स अ डे इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर. मतलब हम अगर 15 घंटे तक काम कर रहे हैं और लोगों को काम करते देख रहे हो, बोले अरे यार वो बहुत ज़्यादा बिजी है. सो उससे अगर प्रोडक्टिवनेस नहीं निकल रहा है तो एंड ही इज़ नॉट इफेक्टिव, सो उसका कुछ भी काम नहीं है. सो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप जाएंगे तो यू विल सी कि देयर आर वेरियस चैप्टर्स. एंड इस चैप्टर का समरी का आई विल नॉट गो इनटू ईच एंड एवरी चैप्टर. आई विल जस्ट टेल अबाउट द की चैप्टर. फर्स्ट part is the smartphone trap. Everyone knows, and the author calls smartphone is just a slot machine in our pockets. कुछ नहीं है, just एक slot machine है. Every notification is a distraction, and we need to create a no phone zone. हमें अगर आगे कुछ करना है, प्रोडक्टिव बनना है, तो सबसे पहले हमको नो फोन जोन क्रिएट करना होगा अपने आप के लिए. एंड अगर फ़ोन पास भी है तो हम उस पर फोकस नहीं कर सकते. तो वी शुड हैव सम टाइम जहाँ पे हमें नो फोन जोन क्रिएट करके अपने फोकस को बढ़ाना है. सेकेंड चैप्टर ऑन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट इज द रूल ऑफ 3. ये 3 का जो रूल है ना, इट इज़ अ वेरी सिंपल सिस्टम. एवरी मॉर्निंग वी राइट डाउन ओनली 3 थिंग्स.
हर एक मॉर्निंग को हमें सिर्फ 3 चीज़ लिखना है, कोई 10 चीज़, 20 चीज़ या 50 चीज़ नहीं लिखना कि हमें दिन भर में करना है। क्योंकि अगर हमें कोई फ्री छोड़ दे कि यार कौन-कौन सा टू डू लिस्ट है तुम्हारे पास, तो ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि हम पूरा लिख देते हैं। आज बाइक बनाना है, अरे यार आज ऑफ़िस का प्रेजेंटेशन भी था, वाइफ़ ने धनिया लाने को बोला हुआ है, ओके, एंड लॉट ऑफ थिंग्स कि डॉक्टर को भी मैंने बहुत दिनों से नहीं दिखाया है, मेरा बॉडी चेकअप पेंडिंग है और ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बट द रूल ऑफ 3 के व्यू से द राइटर वांट्स टू सजेस्ट अस कि we do not need to write all the 10-20 things. We write to only just 3 things, and if we finish this we are successful, and it gives us a sense of win every single day. आज हमने 3 किया तो कल हम दूसरा 3 करेंगे, तो we need to distribute our task into very 3-3 के slot में divide करना है। And in the next chapter of this part is deep work versus shallow work. इसके बारे में वो deep work वाले बुक में भी बताया गया था कि चेकिंग ईमेल्स इज सैलो। दिन भर हम ईमेल को चेक कर रहे हैं, राइटिंग, प्लानिंग और क्रिएटिंग अगर हम ये करते हैं तो दिस इज डीप। चेकिंग ईमेल इज नॉट प्रोडक्टिवनेस, ये सैलोनेस है, ये हम कभी भी कर सकते हैं। बट राइटिंग, प्लानिंग या फिर कुछ हमें लिखना है या तो फिर कुछ और करना है, सो दीज आर डीप वर्क। एंड डीप वर्क के लिए वी शुड गिव आवर बेस्ट आवर्स, जिसको हम पीक आवर्स बोलते हैं, इधर मॉर्निंग टाइम में या वैसे टाइम में जब हम नो फोन जोन में रहते हैं, या कहीं पे जब हमारा प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है। सो इस ड्यूरेशन में वी शुड डू द डीप वर्क and leave the boring stuff when we are tired, and checking mails and checking notifications comes into that stuff कि जब हम फ्री बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो then we should scroll sometimes, and it is also required sometimes. And the last and very important chapter of this part is where the author wants to tell us the power of no. ये भी हमने पढ़ा है, आर्ट ऑफ सेइंग नो। वी ऑफन से यस टू प्लीज अदर्स। कुछ चीज़ों के लिए हम यस बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं कल से आपको हेल्प करूँगा, या तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ठीक है मैं ये ला दूंगा। बट एवरी यस टू समवन एल्स इज अ नो टू आवर ओन गोल्स। मतलब हम सबको अगर हाँ हाँ करते रहेंगे तो हम हमारे लिए, हमारे ओन गोल्स के लिए ये नो होगा। एंड प्रोडक्टिविटी इज अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर टाइम लाइक इट्स गोल्ड। सो यस, आर्ट ऑफ सेइंग नो भी हमें सीखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट, स्लाइड सॉरी। यस, सो बिफोर वी गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड, ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर में देयर इज़ वन मोर स्टोरी विच आई वुड लाइक टू शेयर। द स्टोरी इज़ अबाउट सिमरन। एंड सिमरन का एक डिजिटल भूल भुलैया होता है। तो सिमरन is a lady who considers herself the queen of multitasking. आप लोगों में से अगर कोई सिमरन है तो आप रिलेट कर सकते हैं। हर लैपटॉप इज ओपन विथ 20 टैब्स, 20 टैब उसके लैपटॉप पे खुले हुए हैं। हर फोन इज बजिंग विथ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टा नोटिफिकेशन एंड अदर नोटिफिकेशंस। एंड साइड में नेटफ्लिक्स चल रहा है, जहाँ पे वो कोई सीरीज वो कंप्लीट कर रही है। तो सी फील्स लाइक सी इज़ वर्किंग सो हार्ड, अपना सारा काम कर रही है, पूरा दिन बिजी रहती है, और रात को आती है और थक कर चूर हो जाती है, एग्जॉस्टेड। बट एट 6 PM इवनिंग में, 6 या 7 में, व्हेन शी लुक्स एट हर टू डू लिस्ट, जब वो बाहर बाद में जाके अपना टू डू लिस्ट जो उसने सुबह में बनाया था वो देखती है, देन शी रियलाइजेज दैट द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क उसमें ऐसा होता है, वो विच वॉज नेवर इवन टच्ड फॉर दैट डे। उस दिन उसने उसको टच भी नहीं किया है, जबकि दिन भर उसने काम किया और मल्टीटास्किंग किया। सो ऑथर यहाँ पे बहुत ही अच्छा हिट करते हैं, ही हिट्स वेरी हार्ड। ही सेज कि बीइंग बिजी इज ऑफन अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस। हम बिजी हैं लेकिन हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, हम दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बट येस इट इज़ ऑफन अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस। तो हम सिमरन की तरह छोटे और ये जो टेम्पररी कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि रियल ग्रोथ के लिए, रियल काम के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। और सिचुएशन उसका सिचुएशन हमारा ऐसा हो जाता है दैट वो जो लकड़हारा
का एक कहानी हमने बचपन में पढ़ा था कि हु हैज़ बीन हिटिंग अ ट्री फॉर 10 आवर्स स्ट्रेट, ही इज स्वेटिंग, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज टायर्ड, बट द ट्री वोंट फॉल। वो ट्री गिरता ही नहीं है। वाई? बिकॉज उसकी जो आरी है, द सॉ, ये ब्लंट हो चुकी है। एंड अगर उसने आरी को थोड़ा शार्पन कर लिया होता, थोड़ा 10 मिनट टाइम देके उसको थोड़ा शार्पन कर लिया होता, तो क्या होता कि वो पेड़ इजीली कट जाता। तो हम लोगों के लिए क्या है कि शार्पनेस मेहनत से नहीं, डीप फोकस से आती है। तो वी शुड शार्पन आवर एक्स ऑलवेज। एंड अ पोएम टू टू कंक्लूड दिस पार्ट इज कि शोर शराबा बहुत है बाहर, थोड़ा अंदर झांकिए। कि शोर शराबा बहुत है बाहर, थोड़ा अंदर झांकिए। फालतू की भीड़ में अपना रास्ता खुद छांटिए। दिन भर भागना ही तो कामयाबी नहीं होती। कि दिन भर भागना ही तो कामयाबी नहीं होती। बिना दिशा की मेहनत कभी फल नहीं बोती। मोबाइल की इस दुनिया से थोड़ा पीछा छुड़ाइए। बच्चों वाला सजेशन है कि मोबाइल की इस दुनिया से थोड़ा पीछा छुड़ाइए और ज़िंदगी के असली कामों में, रियल कामों में अपना मन लगाइए। तो वी शुड फोकस ऑन द थिंग्स विच आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग अस, और एलिमिनेट, और ये जो ट्रिक्स जो बताए हैं ऑथर ने, उस पर फोकस करें। सो आई होप बोथ दी पार्ट्स आर क्लियर। मैं पूरा पार्ट को डिटेल नहीं कर रहा बिकॉज डिटेल इज देयर इन द बुक। आई जस्ट एम ट्राइंग टू गिव द समरी एंड व्हाट दोज पार्ट सेज। एंड next slide, that is part 3. This part, this lifts the book from good productivity advice into something bigger. अभी हम लोगों ने प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आने का रास्ता ढूंढ लिया, हम लोगों ने प्रोडक्टिव होने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजीज अपनाए। एंड दिस पार्ट इज इज टू बी कंसिस्टेंट, कि अब हम लोग आगे क्या करें। सो दिस पार्ट एक्चुअली it also has many chapters, so I'll give a summary. First is consistent is the key. आप आगे जाएं, अपलक जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So these are few of the chapters of this part, and I'll just give a summary. One chapter is consistency is the key. Success is boring, it is doing the same good things every day for years. अगर हम एक ही काम को सालों से कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो वो भी हमें बोरिंग लगता है। एंड द ऑथर एक्सप्लेन्स द कंपाउंड इफेक्ट। दिस टुडे इज 0.1% इम्प्रूवमेंट लुक्स लाइक नथिंग, बट इन अ ईयर इट मेक्स अ डिफरेंट पर्सन। तो अगर हम बोरिंग काम को भी कर रहे हैं, एक काम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो आगे चल के हमें बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। सेकेंड इज कंट्रोल वॉट यू कैन। Sometimes, we worry about the boss, the traffic, or the news. So the author says ki let it go. Focus only on your effort and your attitude. बॉस क्या बोलता है, ट्रैफिक है या नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको हमको इग्नोर करना है। हमें सिर्फ अपने एफर्ट पे फोकस करना है, अपने एटीट्यूड पे फोकस करना है। एंड एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एक्सटर्नल एंड नॉट वर्थ ऑफ आवर पीस। Okay, because we know how to avoid procrastination, we are going to make ourselves consistent. तो consistent करने के लिए we need to control what we can. Okay, so उसके लिए हमें external factors जो हमारे लिए worth नहीं है, we should not focus on that. Third is universal skills. We should not just be good at one job. We should learn to communicate, we should learn to negotiate, and we should learn to take care of our body. So these are high value skills that will help us no matter where we go in life. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम सीख जाएंगे, स्किल्स को सीख जाएंगे, सो वी कैन डू एनीथिंग। बिकॉज इसमें एक चीज़ लिखा है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ये हम इग्नोर करते हैं। वी आर लर्निंग लॉट ऑफ स्किल्स बट वी आर नॉट लर्निंग टू मेंटेन आवर हेल्थ। तो मेंटेनिंग आवर हेल्थ is also a universal skill which is required to be learnt by everyone. And one chapter is the to do it today mindset. वो आना बहुत ही जरूरी है कि and the book ends with a reminder that we are mortal and we don't have time forever. किसी भी चीज़ों के लिए हमारे पास ज़िंदगी भर का समय नहीं है। And this isn't scary, it's a motivation. And if we want to be happy, we have to start now.
Okay, so these are the basic things which we learn from this chapter. And I'll also end this chapter with a story कि एक छोटी सी कहानी है, पुरानी कहानी है। हमने कहीं ना कहीं पे सुना होगा कि एक मूर्तिकार होता है, स्कल्प्टर। सो ही वॉज वर्किंग ऑन अ मैसिव अगली रॉक। कोई बहुत बड़ा पत्थर था और देखने में उसका कोई शेप था वो गुड नहीं था, बट इट वॉज वेरी मैसिव। उस पर वो ठोक ठाक करते रहता है एवरी सिंगल डे। ही वुड वेक अप एंड जस्ट गिव वन स्मॉल स्ट्राइक, एक हैमर मार के आ गया या वो किया विथ हिज हैमर। लोग जो हैं उसके आमने सामने, देवर मेकिंग जोक्स ऑन हिम, अरे तुम क्या कर रहे हो, सुबह से शाम तक उस पत्थर पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। लोग उस पे हंसते थे। दे सेड भाई इतने बड़े पत्थर को एक हल्का सा चोट से, एक हैमर दो हैमर लगने से क्या ही फर्क पड़ेगा। देन ऐसा करते करते मंथ्स पास्ड, बहुत दिन हो जाते हैं। एंड द रॉक लुक एग्जैक्टली द सेम। पत्थर वैसा का वैसा जैसा रहता है वैसा ही दिखता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। लेकिन द स्कल्प्टर डिड नॉट स्टॉप। Exactly 1 year later, what happens? The rock suddenly cracked open into a beautiful angel statue. वो रॉक जो जहाँ जहाँ पे हैमर हुआ था वो धीरे धीरे टूटना चालू होता है, क्रैक होना चालू होता है। एंड उसके बाद एक ब्यूटीफुल एंजल की मूर्ति में वो कन्वर्ट हो जाता है। पीपल वेयर शॉक्ड। दे आस्क्ड कि हाउ डिड यू नो एन एंजल वॉज इनसाइड। आपको कैसे, आप तो इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि एक एंजल जो है वो इस पत्थर के अंदर था। सो देन द स्कल्प्टर स्माइल्ड एंड सेड कि एंजल तो पहले से ही अंदर था मैं तो बस रोज थोड़ा थोड़ा फालतू पत्थर, मतलब उसके ऊपर में जो एक्स्ट्रा स्टोन है ना एंजल के ऊपर में, उसको हटा रहा था। सो आवर लाइफ इज एग्जैक्टली लाइक दैट रॉक। वी वांट सक्सेस, वी वांट सक्सेस, जल्दी चाहिए, लॉटरी की तरह चाहिए कि वी शुड हिट अस ओवरनाइट। बट the author through this chapter teaches us the 0.1% rule कि कामयाबी कोई चमत्कार नहीं है। इट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्मॉल स्मॉल डेली विंस। सो अगर हम रोज़ थोड़ा सा फालतू पत्थर हटाएंगे अपने ऊपर से, अपने डर का और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उसका, अपने फ़ोन एडिक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट, और कल करेंगे वाला एटीट्यूड का, तो एक दिन हमारा जो असली हीरो है, हमारे अंदर का जो एंजल है, वो बाहर डेफिनेटली आएगी। एंड पोटेंशियल हम सबके अंदर है, बस हमें उस पर सही वॉर, सही हैमरिंग करने की ज़रूरत है। सो यस, दिस वाज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस बुक। एंड दीज आर सम ऑफ द कोट्स, ठीक है। एंड ये कोट बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है कि जो मुझे पसंद लगा अपने बुक के अंदर से, दैट इज देयर। फर्स्ट वन इज, दिख रहा है आपको सबको स्लाइड? जस्ट अ मिनट। फर्स्ट वन इज, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। ये सब व्हाट्सएप स्टेटस पे हम लोग लगा सकते हैं। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। थर्ड वन इज, द क्वालिटी ऑफ your life is determined by the quality of your daily habits. And last one is, start before you are ready, start before you are scared, just start। तो हमें जस्ट स्टार्ट करना है, एंड दैट इज नथिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लग जी। So these are few of the ideas which we will actually remember if we read this book। एंड फर्स्ट आइडिया जो है वो मैंने पहले भी लिखा था कि वी आर आर एक्शंस नॉट आर इंटेंशंस। द ऑथर सेज, दिस इज सेज एट वेरी फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द बुक कि माई फिलोसफी is totally described into the 3 word sentence, and the 3 word sentence is do it today। इस बुक के पहले ही इंट्रोडक्शन सेक्शन में उन्होंने इस चीज़ को लिखा है। नाउ व्हेन वी फील मोटिवेटेड, नॉट व्हेन द टाइमिंग इज परफेक्ट, द टाइमिंग इज टुडे ओनली, राइट।
एंड सेकेंड इज सिस्टम्स बीट विल पावर एवरी टाइम, जो हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा. सो दिस इज एक्चुअली द समरी ऑफ ऑल द 3 पार्ट्स कि every time the author overcame procrastination. It wasn't through a sudden burst of motivation. कभी नहीं आया. वो अपना जो भी उसने फील किया, he has just delved everything into the practicality and mentioned in this book. Third one is obviously the compounding works on everything. We all know that Warren Buffett के बारे में हमने पढ़ा है ना. He built 99% of his wealth after 50 years of age. So it was just due to his consistent effort. वो 0.1% वाला उसने कुछ किया था. So yes, these are the 3 ideas which are very important and which are the learnings from this book. Next slide. Yes, so this is actually my opinion about this book. I have read lot of productivity books. Group member knows कि मैं बहुत ही ज़्यादा self help book पढ़ता हूँ, and many of them leave me feeling very worse. Like I'm somehow failing at life because I don't have a perfectly colored coded system or 4-5 AM का wake up routine कभी कभी नहीं हो पाता है. तो but what I love about this book about the writer is his honesty. He admits that he is naturally unproductive. कभी कभी ना राइटर जैसे रॉबिन शर्मा का पढ़ोगे, वो कभी नहीं लिखेगा मैं फेलियर हूँ, ये हूँ, वो हूँ. So but this writer admits that he is naturally unproductive. He says if it weren't for my productivity system, I would get nothing done. He is writing for the rest of us. मतलब हम सबके लिए वो लिख रहा है, not from some कुछ imaginary वो करके नहीं, but all the feelings and all the stories what he has faced. So yes, and every chapter is in the essay format, which is very genius from his genius writing. And we can open this book to any other chapter any one day. मतलब ऐसा नहीं कि हम chapter 1 निकाले तो ही हम पढ़ें तो होगा. हम कोई भी chapter अगर किसी दिन भी उठा के पढ़ लें तो it will give us the clear idea कि क्या वो कहना चाह रहा है. And next, in next part I have rated this book actually. इसके बाद this is the thing, what exactly is the difference between other productivity book and Do It Today. So the main feature is short, focused essays, easy to read, honest and self aware tone, जो मैंने अभी बताया, साइकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में, प्रैक्टिकल एक्शन के बारे में. और इसने जो फिलॉसफी यूज़ किया है, स्टोइक फिलॉसफी, एंड उसको मर्ज किया है न्यू आइडियाज़ के साथ में. वी कैन स्टार्ट एनीवेयर. नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट स्लाइड. Yes, so this is my rating. Just we rate the things. So for this book I have rated 4.5, just due to few of the things which I loved, based on the practicality and easy to understand, psychologically informed, not just tipped, short chapters, perfect for busy people, honest, relatable, not preachy tone, and stoicism, which I told. There are few limitations as well if you go now. There are some chapters which is repetitive. कोई भी राइटर का होता है, वो लिखता है तो एक दो चीज़ों को बार बार रिपीट कर देता है. कुछ रिसर्च को देख के लगता है कि उसने सिर्फ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया है, बट उसने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है साइकोलॉजी बाकी चीज़ों के ऊपर में. और अगर जो एडवांस्ड रीडर होंगे, हमारे ग्रुप की तरह बहुत सारे लोग जो एडवांस लेवल पे पहुंच गए, उनको शायद ये बुक बच्चा जैसा लगे, बट यस, बिगनर्स के लिए दिस इज़ वेरी गुड बुक. सो या, दिस वाज ऑल अबाउट द थिंग्स. Am I audible, पलक जी? वो स्लाइड चला गया क्या? Yes, this is the last slide. Would you like to share about this or? No, last, just I would only like to say, कि through all
the chapters and parts of this book, the author, उसका एक ही मैसेज है कि नॉलेज इज़ यूजलेस इफ़ यू डोंट यूज़ इट। मतलब अगर हमारे पास नॉलेज है, अभी हम बहुत कुछ सीखे, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए यूजलेस है। हमने आज बहुत सारी बातें की, स्टोरीज सुनी, कुछ कुछ पोएम्स पढ़ी, बट ऑल ऑफ दिस विल मीन नथिंग इफ़ वी लॉग ऑफ दिस कॉल एंड गो बैक टू आवर ओल्ड हैबिट्स। ठीक है, तो ज़िंदगी हमें मौके बार बार नहीं देती। उसका यही इस बुक का समरी है कि इफ़ वी वांट टू चेंज तो हमें आज स्टार्ट करना होगा। हमें अगर हेल्थ पे काम करना है तो वर्कआउट हमें आज स्टार्ट करना होगा। हमें अगर बुक लिखना है तो हमें आज चालू करना होगा। फर्स्ट पेज हमें आज लिखना पड़ेगा, और हमें और भी बेटर बनना पड़ेगा, पढ़ना है तो वो बेटर का शुरुआत हमें आज करना पड़ेगा। द डायलॉग विच वी हैव लर्नड इन कल हो ना हो मूवी में, and I would like to summarize entire book with a last poem I would like to share. Should I? Yes, please. Yeah, this poem summarizes every part of the book, and this would be the closing line कि बड़े बड़े सपनों को अक्सर कल की भेंट चढ़ाई है। हमने खुद ही अपने हाथों अपने वक्त गवाई है। सोचा था जब सही वक्त आएगा तभी कदम बढ़ाएंगे, पर वक्त तो चलता रहता है, हम पीछे छूट जाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन एक दलदल है। मैंने पहले भी बोला कि एक ट्रैप है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक दलदल है, इससे बाहर आना सीखना होगा। छोटी छोटी खुशियों से मुश्किलों को हराना सीखना होगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ दिन भर भागना नहीं होता। बिन दिशा का माझी तो सिर्फ कभी बिन क्या उस एक मिनट, आई वॉज राइटिंग एंड आई फॉरगॉट कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ दिन भर भागना नहीं होता। बिन दिशा का माझी तो कभी किनारा नहीं पाता। हर दिन का वो 0.1% कमाल दिखाएगा। हर दिन का वो 0.1% कमाल दिखाएगा। आज का किया हुआ छोटा बदलाव कल इतिहास बनाएगा। ना उम्मीदों में वक्त गवाएं, ना किस्मत को कोसना है। अपने अंदर के उस हीरो को अब हमें ही खोजना है। सवाल ये नहीं कि हम क्या जानते हैं, सवाल ये है कि हम क्या करते हैं। क्योंकि अक्सर हम करने से ज़्यादा सोचने से ही डरते हैं। तो छोड़िए बहाने सारे और उठिए अभी इसी पल, क्योंकि जो आज नहीं कर पाए वो कभी नहीं होगा कल। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता भी अभी चुनना है। सपनों की इस उड़ान को अब हकीकत में बदलना है। तो फ्रेंड्स, अब वेट ना करें, आए, लेट्स डू इट टुडे। What a beautiful session with closing lines. बहुत ही बढ़िया था. Thank you so much, Santi ji. Yes, any discussion points? Yes, Pramit sir, would you like to share? Yeah, definitely. So, first of all, amazing review by Santi ji. And I think Palanchi didn't notice in the beginning, as we know Santi ji by the name of Santi ji. So, when I saw this, artwork, na, Santosh Gupta, I thought, who is this new member? New TBF member joined. So, that's why I said, Palak ji, kya host ko aane to do, he was starting the recording. So anyway, jokes apart, the Santi ji ka USP ये है कि always he is ready with his poems, unique poems, and that is his amazing skill. We like it, and thank you very much for this. Thank you. Very nice. Thank you. Very well said, Pramit sir. Hello, Sher sir. He even incorporated each and every chapter and section of the book along with his poems and along with the short story for us to understand. Otherwise, a self-help book like this is very boring and difficult to go through. But because of his storytelling skills, it was amazing. Thank you so much, Auntie ji. Thank you. Yes, we can take a selfie. Sher sir is here. Good evening, Sher sir. Would you like to take a selfie for all of us?
Okay, everyone please turn on your cameras. We can take a selfie. Parimala ji, Kunjan ji, Meghna ji. Yes, yes, sir, we are ready. Please, we can take a selfie. Shall I take? Okay, ready everyone. Smile. Other camera. No, thank you. Thank you so much, sir. सो यस बहुत ही अच्छा बहुत आसान तरीके से आपने बता दिया अदरवाइज जो बुक्स हैं वो बहुत ज्ञानवर्धक है टू मच नॉलेज लाइक एज यू सेड प्रैक्टिकलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू इम्प्लीमेंट कि पढ़ के बस चले ना जाए सो दैट्स व्हाट अ सेल्फ हेल्प इज ऑल अबाउट and the more you read a self help more you realize that everyone is saying exactly the same thing but in a different choice of words so beautifully explained and I would like to commend you on your presentation skills the gorgeous presentation it was very beautiful first of all and very good to understand बहुत अच्छा लगा आपकी presentation देख के wonderful थोड़ा टाइम कम मिला मुझे खुद के प्रेजेंटेशन के स्पीकिंग पॉइंट्स और कुछ और करने में बिकॉज जल्दी जल्दी करना था और ये बुक पढ़ा हुआ था तो इसीलिए उतना दिक्कत नहीं हुआ बट यस आई कुड हैव रिटेन थोड़ा और भी डीप पोएम में कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी बहुत ही सिंपल थी तो अभी क्या है कि इफ़ आई क्रिएट दिस पोएम यू नो या फिर लुक बैक दिस पोएम्स जो भी मैंने बोला तो उसके लाइंस में डेफिनेटली आई कैन चेंज और बाकी चीज़ so I myself was not able to review the things which I prepared for today but yes हो गया and it was the confidence कि सारे लोग अपने ही हैं गलत भी होगा कुछ होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा and yes it went like that only I would request you to share your poems in the main group. That would be quite relatable to the content of the book. So yes. All right. Any other? Meghna ji, would you like to share? Parimala ji, Meghna ji. Sher sir, you just joined. Would you like to share anything on procrastination? सर आपने एग्जांपल दे दिया कि यू डन इट टुडे बस और तैयारी तो कभी पूरी नहीं होती है और सर सब लोग अपने ही हैं बट Very true. I was in office so I joined just I came and I just log in so I saw that session is still going on तो मैंने चलो ज्वाइन कर लेते हैं बट यस डू इट टुडे द एक्शन मैटर्स only the action matters rest everything is illusion right Very and true. you can share the slide with everyone the last slide Yeah. of the book where I have mentioned the 8 things that we are taking home from this book was clearly mentioned वो 8 चीज़ जो है that is the only सार from the book and nothing else वो बस that is the only learning so वो स्लाइड शेयर करने से हो जाएगा and Wonderful. yes Okay. So yes. Yeah. thank you so much आजकल earlier we used to see Rumit sir alone. Now we see Rumit sir always in pair. Santi जी के साथ दिखते हैं Rumit sir. Yes, Parimala ji. Yeah, it was so nice, wonderfully presented. Thank you so much. And your Hindi poems, you can voice record it because I don't know to read Hindi, so that I can able to listen. I can understand Hindi and speak a little bit, but I cannot read and write Hindi. So I You can love check the listening. recording on YouTube, so you will get the recording. Okay. Congratulations and all the best for shifting to a new place. Yeah, yes quite challenging but yes understand. Wonderful. Thank you so much, Parimala ji. All right. So yes, with that we can wind up our session. With that we come to the end of our session. Tomorrow we will be having community reading chapter 41-42 by Kamal Dang sir.
So yes, at 7 a.m. let's meet tomorrow. And on at 7 p.m. tomorrow we will be having Gita session, part 3 by Swami Prem Maitreya ji. So do log in. Good night, everyone. Thank you so much for joining. Good night. Bye. Bye bye.